sir. Sir. Okay, Yes, beta. sir. Okay. Be ready all. Good morning, my dear students. As today we are going to discuss the concept about the Panchayati Raj. But before starting this chapter, I want to recapitulate the previous chapter that we have discussed earlier. What is government? So in the government chapter, I told you about the different types of the government and the different levels of the government. I told you two things. One is different type of government and second is different levels of the government. So the very first thing is that you have to clear all these concepts like the type of government and the different levels of the government, because until you not clear this concept, you may be not understood the further concepts. So today we are going to recapitulate the previous thing so that we can understand the Panchayati Raj very well. In the previous chapter, what is government? I told you different types of the government. I told you that about the democratic government, monarchy government, and dictatorship government. These are the three types of the government. So how many types of the government? How many types of the government, beta? Three types. Very good, Dhavni. Three types. There are three types of the government. The very first is democratic government. Very first is democratic government. Second is our monarchy government. And third is our dictatorship government. Monarchy government. As you are aware, monarchy means monarch or a king. So as its name indicates, where king ruled the public or ruled over the public, so that is the monarchy government. In the previous months, you watch a serial on the national channel, that is the Ramayana. So in the Ramayana is the character sketch of the Lord Rama. So Sri Ram is the king of Ayodhya. कहाँ के राजा थे श्री राम? अयोध्या के राजा थे. So Sri Ram is the monarch here. Sri Ram is the king here. So that type of the government is monarchy government or monarch government. यानी कि जहां पे एक राजा का राज चलता है, एक राजा राज्य करता है. So that government is the monarchy government. You heard the name of Emperor Ashoka, Chandragupta, and in this level you will also discuss about the different rulers. So in the ancient time or medieval time, what are the different rulers? They are the monarch government. For example, you watched a movie. In that a concept has been told about the Rajput rulers and the Muslim rulers. So there is a ruler, I think name is the Alauddin Khilji. So Alauddin Khilji is the example of the monarchy government. Okay. Next is our dictatorship government. Dictatorship government in which a person or a dictator take the military power in his hand and ruled over a country. यानी कि डिक्टेटर तानाशाह जो होता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति जो है मिलिट्री पावर को, यानी कि जो उनकी आर्मी की जो पावर्स है उनको अपने हाथ में ले लेता है और उस आर्मी के दम पर, उस आर्मी की ताकत पर वो क्या करता है कि वहां की पब्लिक के ऊपर राज करता है. तो इस तरह से जो आपकी गवर्नमेंट होती है उसको हम कहते हैं डिक्टेटर गवर्नमेंट. कौन सी गवर्नमेंट होती है बेटा? वो डिक्टेटर गवर्नमेंट. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जर्मनी में एक डिक्टेटर हुआ करते थे बेटा, हिटलर. हो सकता है आपने नाम भी सुना हो. तो हिटलर ने क्या किया था, जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए, उसको एक करने के लिए और दूसरों से बदला लेने के लिए उसने जो है वहां पे मिलिट्री पावर को गेन करके अपना राज स्थापित कर लिया था. तो हिटलर जो है दैट इज द डिक्टेटर गवर्नमेंट.
ऐसे ही आप इराक में आपके एक डिक्टेटर हुए हैं सद्दाम हुसैन, उसका नाम भी आपने सुना होगा। तो सद्दाम हुसैन जो हैं वो भी आपके जो हैं डिक्टेटर हुए थे। ऐसे ही अगर हम अपने नेबरहुड कंट्री की बात करें, जनरल परवेज मुशर्रफ, जिसको जो है शायद पीछे अभी लास्ट ईयर जो है शायद फांसी वगैरह भी जो है दी गई थी, उन्होंने भी जो है मिलिट्री पावर को गेन करके जो है पाकिस्तान में जो है आपका जो है डिक्टेटर गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया। और अगर हम आज के टाइम में देखें, आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया देश का नाम आपने सुना होगा। जो नॉर्थ कोरिया जो देश है आपका, वहां पे किम जोंग का राज चलता है। तो किम जोंग जो है वो एक डिक्टेटर गवर्नमेंट। तो मोनार्की में एक राजा और डिक्टेटरशिप में एक डिक्टेटर यानी कि एक क्रूअल व्यक्ति जो है वो शासन करता है। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव द democratic government. I told you about the democratic government. Democratic government is the government of the people. Means you are the people, you choose your representative by casting the vote. यानी कि वोट डालकर आप जो है अपनी गवर्नमेंट को चूज करते हैं. So that is the democratic government. I told you about the Abraham Lincoln. Abraham Lincoln said that democratic government is the government of people, by the people, and for the people. What is the democratic government? Democratic government is the government of the people, यानी कि लोगों की सरकार होती है. By the people, लोगों के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि आप लोग बनाते हैं. And for the people, और वो सरकार किसके लिए काम करती है? आप लोगों के लिए काम करती है. So democratic government is the government of people, by the people, and for the people. So in that democratic government, you choose your representative by casting the vote, and after that you select, after that when you elect your representative, that representative put your matters in front of the government, and government resolve all these topics or all these issues. So that is the democratic government. अब बेटा चैप्टर 4 आपका आता है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि जो हम पंचायती राज पढ़ेंगे, पंचायती राज इज अ टाइप ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. हाउ इट इज अ टाइप ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वी विल डिस्कस थ्रू दिस चैप्टर पंचायती राज. तो जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है सम फीचर्स, उसकी कुछ विशेषताएं होती है जिसको आप कहते हैं की एलिमेंट्स. प्लीज नोट डाउन दिस, key element of democratic government. Note down this, please write all. Democratic government, key element of democratic government. The very first is element of the democratic government, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, सबसे पहला जो एक तत्व होता है, एक कारक होता है, वो होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. UNIVERSAL, यूनिवर्सल अडल्ट, ADULT अडल्ट, फ्रेंचाइज FRANCHISE, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. Everybody has written this? Dhamni, you have written? Okay. Universal adult franchise. As its name indicate, the people of 18-year age, the people of 18-year age or more than 18 year of age has right to cast one vote. यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल हो गई है या 18 साल से अधिक है, उनको एक वोट डालने का अधिकार है. दैट इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. अभी मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो. कैसे चुनते हो, कैसे इलेक्शन होता है उसका? बाय कास्टिंग दी वोट. यानी कि आप अपने फेवरेट कैंडिडेट के पक्ष में, उसके फेवर में एक वोट डालते हैं, और जिसको ज्यादा वोट मिलती है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में
आपके रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने जाते हैं? बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और यू कैन से दैट बाय कास्टिंग दी वोट। अनमोल कैसे चुने जाते हैं? बाय कास्टिंग दी वोट, द वेरी फर्स्ट इज। सेकंड थिंग इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सेकंड विशेषता क्या होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बेटा? नोट डाउन दिस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ELECTED, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, REPRESENTATIVE। यानी कि जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसमें आपके जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द वोट। यानी कि आप डायरेक्टली उसको चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि आपकी लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी में जो है चार पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं, जैसे कि एक आपका बीजेपी के हो गए, एक आपके कांग्रेस के हो गए, एक आपके आप पार्टी के हो गए, और एक कोई है निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो चार व्यक्ति जो हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अब आप वोट किसको डालोगे? जो आपका फेवरेट होगा, और जो ज्यादातर का फेवरेट होगा उसके पास ज्यादा वोट आएंगे, और जब उसके पास ज्यादा वोट आएंगे तो वो इलेक्शन को जीत जाता है, और जब वो इलेक्शन को जीत जाता है तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। किस चीज का काम करता है बेटा? वो आपके रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। जैसे मैं आपको आपके घर की एक सिचुएशन बताता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो हैं या तो फादर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं या मदर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और कई बार ये भी होता है कि वो दोनों के साथ कंफर्टेबल होते हैं। तो बाय द वे, अगर आप अपनी मदर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं और आपने अपने फादर से कोई डिमांड करनी है, कोई वस्तु मांगनी है, तो आप किसको कहोगे? किसको कहोगे बेटा? अपनी मदर को कहोगे। और आपकी मदर आपकी बात को कहां रखेगी? आपके फादर के सामने। तो आपकी मदर क्या हुई? आपका रिप्रेजेंटेटिव हुई, और फादर इस कंडीशन में क्या हुए? गवर्नमेंट हुए, क्योंकि उनको कार्य करना है। तो इस प्रकार से आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे बेटा आपकी क्लास है, देयर आर 40 स्टूडेंट इन योर क्लास एंड यू चूज वन मॉनिटर फ्रॉम दैट। आपकी 40 बच्चों की क्लास है और उसमें से आप एक मॉनिटर को चूज कर लेते हैं। तो वो मॉनिटर क्या हुआ बेटा? आपका क्या हुआ अक्षय बेटा? वो मॉनिटर आपका रिप्रेजेंटेटिव हुआ। क्या हुआ अक्षय बेटा? वो आपका रिप्रेजेंटेटिव हुआ। तो आपकी जो भी समस्याएं क्लास में आ रही हैं, आप किसको कहोगे बेटा? अपने मॉनिटर को कहोगे, और आपका मॉनिटर उस बात को आपके क्लास टीचर को कहेगा। तो मॉनिटर क्या हुआ उस टाइम पे? आपका रिप्रेजेंटेटिव हुआ। और टीचर क्या हुआ? आपकी सरकार हुई, यानी कि उसको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि आपको कोई भी समस्या आ रही है, आपने वो समस्या अपने क्लास टीचर को बोल दी, सर वी आर फेसिंग सच टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो आप अपने क्लास टीचर को जब वो प्रॉब्लम बोल रहे हैं, तो आपका जो क्लास टीचर है वो आपका क्या हुआ बेटा? क्या होगा संदीप सलूजा? रिप्रेजेंटेटिव होगा। क्या होगा बेटा? रिप्रेजेंटेटिव होगा। और वो आपकी बात को किसके सामने रखेगा? प्रिंसिपल मैम के सामने रखेगा। तो प्रिंसिपल मैम उस कंडीशन में क्या होंगे? आपके गवर्नमेंट होंगे, यानी कि प्रॉब्लम उन्होंने सॉर्ट आउट करनी है। मैं गवर्नमेंट का मैसेज वो मेरे को देंगे, यानी कि टीचर को देंगे, और टीचर उस चीज का मैसेज आप लोगों को देगा, बच्चों को देगा। तो बच्चे क्या हुए? पब्लिक हो गए, पीपल हो गए। टीचर क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव हो गया। और प्रिंसिपल क्या हो गए? आपकी एक गवर्नमेंट हो गए। तो इस प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपके जो है कार्य किए जाते हैं बाय इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव। पहली बात मैंने क्या बताई थी बेटा? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्या बताई थी बेटा? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और दूसरी क्या बताई बेटा मैंने? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्या बताई बेटा दूसरी? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अनीक क्या बताई बेटा दूसरी बात मैंने? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तीसरी बात बेटा, तीसरी बात है आपकी इक्वालिटी।
EQUALITY, EQUALITY, इक्वेलिटी यानी कि एक समान होना, यानी कि जो आपकी डेमोक्रेटिक जो आपकी गवर्नमेंट है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, यानी कि सब में जो है आपकी जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी का ध्यान रखा जाता है। यानी कि ये नहीं है कि अगर मैं पावरफुल हूं तो मैं ही रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा, नहीं। आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिजर्वेशन होती है। क्या होती है बेटा? रिजर्वेशन होती है, आपकी कुछ सीट आरक्षित होती है। जैसे कि उसमें से कई सीट आपकी बीसी कैंडिडेट के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, कई सीट्स आपकी शेड्यूल कास्ट के लिए, कई सीट आपकी शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए, और कई सीट्स आपकी जो हैं विमेंस के लिए, औरतों के लिए होती हैं। यानी कि 33% जो सीट्स हैं वो आपकी जो है रिजर्व होती हैं। यानी कि जो गरीब लोग हैं या वीकर जो सेक्शन है, कमजोर जो सेक्शन है, वो भी अपने बात को अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट में कह सके। तो तीसरी बात क्या हुई बेटा? इक्वेलिटी। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? अनमोल, कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है बेटा? इक्वेलिटी पे। कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? इक्वेलिटी पे। चौथी बात है बेटा आपकी रेगुलर इलेक्शंस। आपकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, for example you choose your democratic government, so it is not compulsory that the government that you once choose it will remain for the throughout your life. No, there are regular elections, वहां पे regular elections होते हैं, and after every 5 year you can change your government. After every 5 year you can change your government. For example आपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना, अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव आपकी विल के अकॉर्डिंग काम करे, और बाय द वे वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है या वो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता है। सिंपल सी बात है बेटा, he or she can't satisfy you. At that time when another elections occur after the 5 year, you can change your representative. आप अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो आप दोबारा भी उसी कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लास्ट प्लान जो था आपका नेशनल लेवल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो बीजेपी गवर्नमेंट का था। बीजेपी गवर्नमेंट ने लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम किया, तो लोगों ने क्या किया? दोबारा से बीजेपी को वोट दिया, और बीजेपी गवर्नमेंट अब फिर काम कर रही है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है बेटा आपका कि गवर्नमेंट जब आपके फेवर में आपकी विल के अकॉर्डिंग काम करती है। लेकिन 2014 में 2014 में जब इलेक्शंस आपके हुए, उस टाइम क्या हुआ था बेटा? कांग्रेस की सरकार को लोगों ने बदल दिया था। तो वो कांग्रेस की सरकार जो आपकी बदली थी बेटा, वो किसकी वजह से बदली थी? कि कांग्रेस की सरकार ने अच्छी तरह से काम नहीं किया, उसके लोगों के विल के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। तो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी जो गवर्नमेंट होती है दैट इज नॉट परमानेंट। आफ्टर एवरी 5 ईयर यू कैन चेंज यूर गवर्नमेंट। आप अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवर बेटा रूल ऑफ लॉ। RULE, रूल ऑफ लॉ, LAW। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या है बेटा? एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति जो हैं एक समान है। एवरी फ्रंट इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, एवरीवन गेट द इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि सभी को जो है समान अधिकार और समान अवसर जो है वो दिए जाते हैं। समान अधिकार और समान अवसर जो है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, our constitutions provide us 6 fundamental rights. How many fundamental rights? 6 fundamental rights for the welfare of the people. We will discuss about the fundamental right in the 8th standard. So we have the fundamental rights.
So if there is the exploitation of the fundamental right, you can approach to the judiciary or to the court. यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई नुकसान पहुंचाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं. सो दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के आपके कुछ की एलिमेंट्स थे. सबसे पहला क्या था बेटा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. वेरी गुड. दूसरा क्या था बेटा आपका, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. दूसरा क्या था बेटा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. थर्ड क्या था बेटा आपका, इक्वालिटी. थर्ड क्या था बेटा आपका, इक्वालिटी. फोर्थ इज रेगुलर इलेक्शंस. फोर्थ क्या था बेटा आपका, रेगुलर इलेक्शंस. फिफ्थ क्या था बेटा आपका, रूल ऑफ लॉ. फिफ्थ क्या था बेटा आपका, रूल ऑफ लॉ. और सिक्स क्या है बेटा आपका, फंडामेंटल राइट. तो ये कुछ की एलिमेंट्स है, यानी कि डेमोक्रेटिक इन सिद्धांतों पे काम करती है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन सिद्धांतों पे काम करती है. अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो आपके लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या है बेटा आपका, कि आपकी जो गवर्नमेंट है, देयर आर द थ्री लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. द वेरी फर्स्ट इज नेशनल लेवल, सेकंड इज स्टेट लेवल एंड थर्ड इज लोकल लेवल. सबसे पहली बात है बेटा आपकी नेशनल लेवल. नेशनल लेवल गवर्नमेंट is also known as center government. As its name indicate, the government that do work for the whole country. पूरे के पूरे देश के लिए जो सरकार काम करती है, उस सरकार को हम नेशनल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं. जो नेशनल गवर्नमेंट आपकी होती है बेटा, वो पूरे देश के लिए काम करती है. वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम नहीं करती, वो पूरे देश के लिए काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, at present at the national level or central level we have the BJP government. And who is our PM? Who is the name? What is the name of our PM? श्री नरेंद्र मोदी जी. कौन है हमारे PM बेटा, प्राइम मिनिस्टर कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी. तो श्री नरेंद्र मोदी जी जो कार्य करते हैं वो पूरे के पूरे देश के लिए करते हैं, नेशनल लेवल पे करते हैं, सेंट्रल लेवल, और सबके लिए वो अपनी प्लानिंग बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं. वो हो गया आपका सेंट्रल लेवल. दूसरा लेवल आपका होता है स्टेट लेवल. स्टेट लेवल में क्या होता है बेटा आपका, एज इट नेम इंडिकेट, देयर आर 28 स्टेट इन अवर कंट्री. तो जो 28 स्टेट हमारे देश में हैं, आप कौन से स्टेट में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं बेटा आप, हरियाणा. कौन से स्टेट में रहते हैं बेटा आप, हरियाणा. तो आपका स्टेट का नाम क्या है, हरियाणा. तो हरियाणा में आपकी एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसको हरियाणा गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं. और यहाँ पे जो आपका हेड होता है उसको हम बोलते हैं CM, चीफ मिनिस्टर. क्या बोलते हैं बेटा, चीफ मिनिस्टर. एंड हरियाणा में एट प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर है बेटा, वो कौन है, श्री मनोहर लाल खट्टर जी. कौन है बेटा, श्री मनोहर लाल खट्टर जी. तो मनोहर लाल खट्टर जी जो काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं बेटा, हरियाणा राज्य के लिए करते हैं, हरियाणा स्टेट के लिए करते हैं. तीसरी आपकी गवर्नमेंट होती है बेटा लोकल गवर्नमेंट. तीसरी कौन सी गवर्नमेंट होती है बेटा, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार. यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया की सरकार को हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं. एज इट नेम इंडिकेट, द गवर्नमेंट दैट डू वर्क फॉर अ पर्टिकुलर लोकेलिटी. Our local government is of two types. कितने प्रकार की होती है बेटा लोकल गवर्नमेंट, दो प्रकार की होती है. रूरल लोकल गवर्नमेंट. पहला कौन सा है बेटा आपका, नोट डाउन प्लीज, रूरल लोकल गवर्नमेंट. सेकंड होता है आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट. फर्स्ट इज अवर रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड सेकंड इज अवर अर्बन लोकल गवर्नमेंट. रूरल, as its name indicate, the government that do work for a rural area. Rural means village. यानी कि रूरल जो आपकी सरकार होती है वो गांव के लिए काम करती है. अब आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत से गांव हैं,
तो हर एक गांव की अपनी सरकार होती है, जिसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत। क्या कहते हैं बेटा? ग्राम पंचायत। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? पंचायती राज। यानी कि पंचायत कहाँ पे होती है बेटा? गांव में होती है। कहाँ पे होती है? गांव में। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें हम पंचायती राज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्राम पंचायत कहाँ पे काम करेगी? आपकी जो है रूरल एरिया यानी कि विलेज लेवल पे काम करती है। दूसरी आपकी होती है बेटा अर्बन। अर्बन में क्या होता है बेटा आपका? कि जो अर्बन जो आपकी गवर्नमेंट होगी, अर्बन गवर्नमेंट एज इट नेम इंडिकेट, सिटी लेवल, जो शहर में काम करती है। आपने शहर में सुना होगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटी। यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो आपकी होती है, जिसमें आपके एमसी होते हैं बेटा। एमसी का नाम सुना होगा आपने, म्यूनिसिपल काउंसलर। उसका जो हेड होता है वो मेयर होता है। तो म्यूनिसिपल जो काउंसलिंग जो आपके काउंसलर होते हैं वो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वहां पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल कमेटी आपका काम करती है। तो शहरों में काम करती है आपकी म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और गांव में काम करती है आपकी ग्राम पंचायत। सो इन द फर्दर लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राम पंचायत। अब तीनों लेवल आपको क्लियर हो गए होंगे, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल। So this is our lecture for today. If you want to ask anything, you can raise hand. I will ask you one by one. बेटा युविका। सर इक्वालिटी का समझ नहीं आया मुझे। इक्वालिटी का मतलब होता है बेटा एक समान, यानी कि सभी जो व्यक्ति हैं वो एक समान है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यानी कि अगर आप कानून तोड़ते हो तो आपको भी वही दंड दिया जाएगा जो वीआईपी को दिया जाता है। कानून की नजर में सब लोग जो हैं एक समान है। और ये भी जरूरी नहीं, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। बस कंडीशन क्या है? वो कंडीशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि इलेक्शन को लड़ने की जो एज है इंडिया में, अगर ग्राम पंचायत का इलेक्शन आप लड़ रहे हैं तो उसके लिए 21 साल की उम्र कम से कम होनी चाहिए। तो 21 साल की उम्र अगर आपकी हो जाती है तो आप ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ सकते हैं। और अगर आप देश का प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो है 35 साल की उम्र का होना अनिवार्य है। तो जब आपकी 35 साल की उम्र हो जाती है तो आप प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि सबको समान अवसर दिया जाएगा, समान अधिकार होंगे। बेटा आशीष वर्मा। आशीष वर्मा। आशीष वर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। अक्षय। अक्षय हो गया, सिट प्रॉपर्ली बेटा फर्स्ट। Sir, what is meaning of option is? हाँ जी, Sir, what is meaning of option is? ऑप्शनिटीज का मतलब होता है बेटा अवसर, मौका देना। यानी कि जैसे कि आपको अब मौका दिया गया है, एक अवसर दिया गया है बोलने का, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शनिटीज। ठीक है बेटा, जैसे सरकार पढ़ने का मौका देती है, आपको अपना टैलेंट आजमाने का मौका देती है, आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। सो दैट इज द ऑप्शनिटीज। अनमोल गर्ग। Sir, universal adult franchise. हाँ जी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है बेटा वोट डालने का अधिकार, राइट टू वोट। जब आपकी उम्र 18 साल की हो जाएगी या इससे ज्यादा की हो जाएगी तो आपको वोट डालने का अधिकार होगा। उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल का अर्थ होता है पूरे के पूरे राष्ट्र, पूरे के पूरे जो है वर्ल्ड में। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है बेटा, जब व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो उसको वोट डालने का अधिकार हो जाता है। जैसे आप भारत के नागरिक हैं, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इंडिया में भी आपकी जो है 18 साल की जब आपकी उम्र हो जाएगी तो आपको जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में आप आ जाएंगे, यानी कि आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। हाँ जी अनमोल।
सर फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज इसी का एक कॉमन वर्ड है बेटा, फ्रेंचाइज, यानी कि आपको उसकी फ्रेंचाइज, आपको उसका अधिकार मिल जाता है। फ्रेंचाइज का मतलब है राइट। और सर नेशनल, हेलो, हाँ जी अनमोल। सर नेशनल लेवल, नेशनल लेवल यानी कि जो पूरे देश के लिए जो सरकार काम करती है उसको हम नेशनल गवर्नमेंट बोलते हैं, नेशनल लेवल। जैसे कि भारत। हेमलता, हेमलता। सर जो आपको लास्ट में एमपी वाला समझा रहे थे ना, लास्ट में तो लास्ट में आपने समझाया ये वाला पॉइंट अभी। लोकल गवर्नमेंट। यस सर, वो वाला मुझे भी समझना है, आपकी आवाज कट रही थी उसमें। बेटा लोकल जो गवर्नमेंट होती है उसके दो प्रकार होते हैं बेटा। एक होती है रूरल लोकल गवर्नमेंट और दूसरी होती है बेटा आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट। जो रूरल गवर्नमेंट है बेटा वो गांव के लिए काम करती है, जैसे कि ग्राम पंचायत। और जो अर्बन है बेटा वो शहर के लिए, सिटी के लिए काम करती है बेटा, जैसे कि आपके जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ना राधिका गर्ग। सर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? इलेक्टेड का मतलब होता है जिसको आपने इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करके, यानी कि चयनित करके, चुनाव करके आपने उसको जिताया है, यानी कि आपने उसको विन करा दिया है, वो होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि आपके लोकेलिटी से 4 कैंडिडेट खड़े हुए बेटा इलेक्शंस में, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगी वो जीत जाएगा, तो वो वहां का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ओके सर। युविका। सर वो मैं पूछी थी, रेगुलर इलेक्शंस क्या होता है? रेगुलर इलेक्शन का मतलब ये होता है कि भारत देश में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं बेटा दोबारा से। यानी कि और किसी भी सर देश, जो हमारा भारत देश है वहां की जो सरकार है वो 5 साल के लिए काम करती है। 5 साल के बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं। सर फिर से बताना एक बार, सर 5 फिर से साल के बताना। लिए, 5 साल के लिए सरकार काम करती है बेटा, 5 साल के लिए जो टेनर होता है 5 साल का होता है। और सर रूल ऑफ लॉ? सर रूल ऑफ लॉ यानी कि जो लॉ है वो सब पे इक्वली अप्लाई होता है बेटा, सब एक समान है कानून सर के। सर 6 फंडामेंटल राइट्स के नाम बताना। हाँ जी, सर 6 राइट फंडामेंटल बेटा राइट्स के अभी नाम। आपसे रिलेटेड नहीं है, अभी आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है बेटा, वो 8th स्टैंडर्ड में हम करेंगे बेटा। सर फिर क्या होता है फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? आपको अपना वेलफेयर करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए और अपने जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, कुछ राइट दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, उनको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं। यानी कि कुछ आपकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो आपको मिलनी ही मिलनी चाहिए, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी मैंने अभी आपको बताया, तो वो आपका जो है फंडामेंटल राइट। सर मैं मोनार्को, सर मोनार्को और हाँ जी, डिक्टेटरशिप। मोनार्की और डिक्टेटरशिप, सर मोनार्की और डिक्टेटरशिप में क्या अंतर है? मोनार्की में बेटा एक राजा राज करता है। कौन राज करता है? एक राजा राज करता है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है बेटा कि जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है उसमें कोई एक व्यक्ति पावरफुल बनके, शक्तिशाली बनके मिलिट्री को अपने अधिकार में ले लेता है, यानी कि मिलिट्री को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है और उस मिलिट्री के दम पे पूरे देश में राज्य करता है, उसको हम बोलते हैं डिक्टेटर। आज के टाइम में मोनार्की कहाँ पे है? सर आज के टाइम में मोनार्की कहाँ पे है? आज के टाइम में मोनार्की बेटा 1-2 देशों में है, जैसे कि भूटान है बेटा, भूटान में मोनार्की गवर्नमेंट है, यानी कि वहां पे राजा काम करता है। और 2004 से 2004 से पहले नेपाल जो था बेटा आपका, नेपाल में भी मोनार्की गवर्नमेंट थी, लेकिन 2004 के बाद अब वहां पे जो है आपकी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई है। और हमारे जो वर्ल्ड की डिफरेंट जो डिक्टेटरशिप का बेटा, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग का नाम आपने सुना होगा बेटा, तो वहां पे आपकी डिक्टेटरशिप सर बहुत मारता है। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके। सर बहुत तो मारे उसने। सर बेटा अंश मलिक। सर रहने दो अंश मलिक बेटा। सर। यस जी बेटा, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर हो गया। Okay, beta. Beta, time is over. If you have still any problem,